I was telling कि सर तो वो रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ वो सेव हो रहा है शायद, मैं देख रहा हूँ। ये कट हो गया था ना कॉल, तो मैंने सेव करने को रखा है, मैं लेक्चर के बाद देखता हूँ उसे। ओके, so I was telling कि in our one single country we are having all possible types of topography, correct? Like we have very good humid tropical western Ghats, है ना, गोवा का दूधसागर waterfall हमने बोला अभी, correct? So such humid tropical regions, you can imagine what type of vegetation will be there over here. Okay, similarly you have the dry peninsular region of India, जैसे if you go towards Telangana side, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ साइड, तो वहाँ पे इस तरह के ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ का वेजिटेशन बहुत डिफरेंट रहेगा। Okay, then you also have the islands, and whenever you say island, the first thing picture that comes to your mind are the coconut trees. Okay, कभी साउथ में जाओ किसी भी डायरेक्शन में, and if you take a flight in any direction you see it's full of coconut trees, right? Then you have the icy Himalayan mountains. Imagine यहाँ का vegetation कैसे रहेगा, right? All types of flowering species, cold surviving ones. Okay, contrasting picture अपने राजस्थान में hot deserts. So you have desert species over there. Okay, and at the same time you also have the mangroves, right? So Sundarban Delta है, and most of the coastal parts of our country also has got very good quality mangrove species. Okay, so like this, such variety of topographical and biomic condition you are having in India itself, and that's the reason India is one such country which has got very huge, immense biodiversity. Okay, so biodiversity depends a lot on the climate and the topography of that place. Okay, so see this, ये कुछ facts and figures देख सकते हैं इंडिया के बारे में कि India shares 8.1% of the total biodiversity wealth of the earth. पूरे अर्थ में जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसका 8.1% इंडिया में है। ओके, एंड इफ यू कंपेयर द लैंड एरिया वर्ल्ड के हिसाब से 2.4% लैंड एरिया is in India. It's such a small country if you compare that to the world, and it is one of the 17 mega diversity nations of the world. Now there are some books which say there are 12 mega diversity nations, and there are some which say 17 mega diversity nations. Okay, so वो change होता रहता है, these numbers percentage also keeps on changing, so you follow your textbook. Okay, but it is said कि जितने भी species है उसका अभी तक हमने approximately 22% ही रिकॉर्ड कर पाए। That means there are so many other species which are yet to be discovered. ऐसे फॉरेस्ट भी हैं जहाँ पर स्पीशीज अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया पूरे वर्ल्ड में। Okay, so all these facts and figures also you can remember. Okay, now there is something called biodiversity hotspot. Okay, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हमें समझना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। यहाँ पे ओके, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है सच स्पीशीज which are found in only that region and not found anywhere else in the world. उस स्पीशीज को बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। ओके, नाउ सी इफ यू सी दिस वर्ल्ड मैप, ओके, वर्ल्ड में इससे हाईलाइटेड है रेड में such areas, यहाँ पे दिया देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो एरियाज इन रेड एंड एरियाज इन ऑरेंज। तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, टोटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में, out of which 3 of them are in India. Okay, so specific geographical areas of the world where the species richness is very high. That means एक ही एरिया में बहुत सारे species. Okay, and besides for any area to be called as a biodiversity hotspot, ये बहुत important है कि minimum there should be 30% of the species which should be endemic to only that region. तब उसको biodiversity hotspot बोलते हैं। That means कोई एरिया है where there are say 100 species, out of that at least 30 species should be found only in that region and not anywhere else. Then उसको बोलेंगे endemic, I mean biodiversity hotspot. All of you understood this? Biodiversity hotspot का meaning समझा? Yes, Yes. everyone, are you there? Yes. Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ही देखो अलग अलग कंट्रीज के रीजन्स हैं
but you see the Indian region also. Yeah, you can see Western Ghats and Sri Lanka is one region. Himalayas is a very good biodiversity hotspot, and the other one is Indo-Burma. So we have three biodiversity hotspots in India. India and the surrounding regions both. Because if you say Himalayas, it is not only in India. Even Western Ghats extends all the way to Sri Lanka. Okay, so but mainly वो India में है, right? So in India we are having three of them: the Western Ghats, the Himalayas, and the Indo-Burma. ये तीन याद रखना, ठीक है? So अभी इंडिया के मैप में जब हम वेस्टर्न घाट्स को देखते हैं, you can see this portion. Western Ghats actually begins from the southernmost tip of Gujarat. गुजरात में सूरत के पास एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां से स्टार्ट होते हैं, and then it extends across the western coast entirely all the way till Kerala. Okay, तो ये पूरा वेस्टर्न घाट्स के रीजन से देखो, all the Konkan region comes under that. So Maharashtra में north western Ghats, then central western Ghats, then you have the Nilgiris. Okay, the Nilgiris is on the border of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, all three. Very good forest area, and the southwestern Ghats. तो जो पालक्काड रीजन है, अगस्त मलाई हिल्स है, ये सब पूरे वेस्टर्न घाट्स में है. इवन सम पार्ट ऑफ द पेरियार. ओके, so this region you have to understand. And second one are the Himalayas. Can you tell me where does the Himalayas begin from? Towards the western side. In India or Himalayas, like it may be outside India also. Where does the Himalayas Pamir begin? not in Tajikistan. Correct, yes. इसका शुरुआत जो है वो अफगानिस्तान के पास, कजाकिस्तान के पास है. ठीक है, वहां से अफगानिस्तान के टिप से पाकिस्तान के होते हुए it enters India. And which are the states in India through which it passes? Kashmir. Yes, it is Jammu Kashmir. Now it is Ladakh also. Yes. Then बोलो जम्मू कश्मीर. Then Arunachal Pradesh. ऑर्डर में जाओ. जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद नेक्स्ट वेयर? Which states in India? After Jammu Kashmir, which is Uttar Pradesh. पहले उत्तर प्रदेश में था, but now there is one state which is carved out of उत्तर प्रदेश. तो अभी अक्सर यूपी में हिमालयस नहीं. See, after Jammu Kashmir, all of you are aware about the basic geography of our country, right? कौन से states कहाँ पर है, कितने union territories हैं. So after Jammu Kashmir, you are having Himachal Pradesh over here, right? Himachal Pradesh है. Then you have Uttarakhand. Uttarakhand पहले यूपी में था ना? So it was in the year 2000 that Uttarakhand got separated from Uttar Pradesh. Okay, so Uttarakhand, and after Uttarakhand, then we have another country over here, that is Nepal. And after Nepal, again there is one Indian state. Which one? यहाँ पर Assam. Sikkim. Oh, it is Sikkim. There is a small Indian state called Sikkim. Sikkim is the state which is surrounded by three other countries actually. नेपाल on this side, ऊपर तिब्बत है, okay, चाइना भी है, and यहाँ पे भूटान. Okay, but Sikkim is in India. And after Sikkim, we go to another country, that is Bhutan. ऊपर तिब्बत and China सब है. And Bhutan के बाद again India. And here you have Arunachal Pradesh. And to some extent it goes all the way till Myanmar also. So Himalayas देखो कहाँ से कहाँ तक extend हो रहा है. And it traverses across so many countries. But the major part of it is in India also. Okay, Nepal is a Himalayan country, Bhutan is a Himalayan country, Tibet भी पूरी तरह हिमालय में, but India का भी काफी Himalayas में. So Himalayas has got a very important role to play for our country, because not only the protection from the cold winds, but also Himalayas is the mountain range जहाँ से बहुत सारे नदियाँ निकलती हैं इंडिया में. The most famous and the largest river of our country, you know, which one is it?
Yes, the Ganga River. Where does the Ganga River begin? गंगोत्री. Correct. The Gangotri Glacier, है ना, जो उत्तराखंड के उधर है, तो वहां से शुरू होते पूरा बे ऑफ बंगाल तक जाता है वो. And imagine wherever it passes through, it makes the land so much fertile. The entire similarly you have the state of Punjab, जो सिंधु नदी की वजह से Indus River, 5 rivers है वहां पे. So we have so many such rivers coming out. Brahmaputra from here, Tibet के इधर से जो आते हैं, in the eastern part of our country. Yamuna also comes from here, Yamunotri. So this gives rise to the good biodiversity in the Himalayan region. And Himalayas maybe there is lower Himalayas, middle Himalayas and upper Himalayas. The बहुत ऊंचाई पे जाते हैं. And lower, middle and upper Himalayas में species diversity is different. At the same time Himalayas को latitudinally भी divide किया गया है, जो सिक्किम से लेफ्ट की तरफ है, from Jammu Kashmir towards Sikkim. That region is called as Western Himalayas. And सिक्किम से जो ईस्ट के साइड में है उनको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय. The species diversity is different in both the regions also. Himalaya. Okay, you don't have to go into much detail, but इतना याद रखना. So understood why Himalayas is a biodiversity hotspot? Okay, तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स देखने मिलेंगे. And Valley of Flowers जो मैंने बताया वो उत्तराखंड में, वो भी हिमालयन फुटहिल में ही आते हैं. ठीक है, such नंदा देवी पीक है. Okay, then you have Mount Everest, you know, right? Coming to the eastern region, that is the Indo-Burma. Now Indo-Burma का मतलब है it is the easternmost part of our country, along with Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam, ये सब जो countries है ये भी आते हैं. ये पूरा region को Indo-Burma biodiversity hotspot बोलते हैं. So eastern part of our country मतलब you have the Assam and the northeast states. That is also very good biodiversity rich area. And as I told last time also कि जो eastern part of our country है, that's a very good high rainfall region. तो जहां पर रेनफॉल प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो, रिवर्स ज्यादा हो, पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगा, वेजिटेशन विल ऑटोमेटिकली बी वेरी हाई, डाइवर्सिटी विल बी वेरी हाई. अभी इसी मानसून सीजन में यू आर अवेयर कि असम में बहुत बारिश हुआ था एंड फ्लड्स हो गए थे. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम में है, बहुत एनिमल्स वहां पे मर गए उसके वजह से. आर यू अवेयर अबाउट दैट? यस, है ना. तो या precipitation does matter. बंगाल में एक रिवर है, उसका नाम है दामोदर. It's a small river, Damodar River. That river is known as the sorrow of Bengal because in every monsoon season it floods and the surrounding regions are flooded. Okay, so biodiversity सब इन सब चीजों से बहुत affect होता है. And eastern part of our country में we have another small, very naturally rich place called Meghalaya, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है. The wettest region of the world is in Meghalaya, Mawsynram. Okay, वर्ल्ड में जितना उतना बारिश नहीं होता है वहाँ मेघालय में होता है. That is why the name itself is Meghalaya, right? मेघा मतलब क्लाउड, आलय मतलब अबोर्ड. Okay, so that is the Indo-Burma. So understood biodiversity hotspot everyone. Okay, उसका मीनिंग समझना है. इंडिया में कौन से 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कहाँ लोकेटेड है, ये सब याद रखना है. ठीक है, दिस लेसन कवर्स एक्चुअली मेनी थिंग्स एंड कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. ओके, नाउ अभी जो हमने IUCN करके डिस्कस किया था, ओके, उसका फुल फॉर्म हमने बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, that IUCN along with another organization called as SSC. SSC is not about the exam that you will give, it is about the Species Survival Commission. Okay, so this IUCN and SSC together they have created a book जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक. ओके, रेड डेटा बुक और द रेड लिस्ट. अभी जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया तो इसका डेटाबेस भी बन गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड whatever threatened species are there, birds, animals, microbes, whatever, plants, सब कुछ, उनका पूरा डेटा एंड कौन से स्पीशीज को थ्रेटेंड के कौन से कैटेगरी में रखना है ये भी उसमें मेंशन किया गया. दैट इज कॉल्ड एज द RDB, द रेड डेटा बुक. ओके, सो दिस रेड डेटा बुक ये कौन से क्राइटेरिया को यूज करके बनाया गया है, दैट इज एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है स्पीशीज का,
कि अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो कितने टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसके लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज मेंशन, द फर्स्ट थिंग इज द ज्योग्राफिक रेंज। दैट मीन्स वो स्पीशीज अगर एक बहुत छोटे एरिया में ही मिल रहा है, देन इट इज एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बिकॉज उसका नंबर बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली स्मॉल पॉपुलेशन साइज, ऑलरेडी इट इज लेस इन नंबर, तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, स्मॉल स्पीशीज साइज ऑल्सो, मतलब छोटे स्पीशीज रहेंगे, स्मॉल एनिमल, स्मॉल प्लांट इन साइज, then they are at a more risk of extinction. Okay, and species in a restricted area, very small region, okay, which is may not be that accessible, या human disturbance रहेगा, okay, and high probability of extinction in the wild, ये कितना ज्यादा उसका chances है survive करने। अभी कोई plants है for example, so it may be possible कि plants are producing the seeds but the seeds don't germinate easily, then they have a high risk of extinction. ओके, लास्ट टाइम एक स्पीशीज का फोटो दिखाया था सेक्रेड ग्रुप में, एंटाडा करके, बड़े सीड्स होते हैं उसके, तो वो इसके एग्जांपल में आ सकते हैं कि द प्लांट इज देयर, इट इज प्रोड्यूसिंग द सीड आल्सो, ओके, बट इट डजंट जर्मिनेट वेरी इजीली, तो ऐसे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के ज्यादा चांस है। तो थ्रेटेंड स्पीशीज का क्लासिफिकेशन, ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी आर डूइंग, थ्रेटेंड स्पीशीज के क्लासिफिकेशन। ओके, उसमें सबसे पहले आएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड का मतलब है कि द नेम इटसेल्फ टेल्स यू देयर नंबर इज डिक्लाइनिंग, नंबर रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू हैबिटेट श्रिंकिंग, कि जहां पर वो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनका हैबिटेट ही रिड्यूस हो गया, मैंने फॉरेस्ट को कट कर दिया, एग्रीकल्चरल फील्ड को कट कर दिया, तो अगर उनको अभी प्रोटेक्ट नहीं किए तो इन द नियर फ्यूचर दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। So these are the two examples that are given in your book. ये examples रखो, that is the lion-tailed macaque. Okay, you can see the tail, it's like that of a lion, but ये monkey species है। monkeys में भी बहुत types होते हैं। Okay, and the other one is lesser florican, very beautiful body, you can see this. Okay, birds में भी इतने diversity, इतने beauties है कि you can't imagine, there is no end to it. Okay, so these are examples of endangered species. Then there is another one called rare species. Okay, rare का मतलब है कि endangered से थोड़ा सा कम खतरा है, still they are in a danger but not that much in danger as compared to endangered species. It is considerably declined and they being endemic they can become extinct very fast. Endemic का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा जगह पे नहीं मिलते, बहुत कम ही जगह पे मिलते हैं, then it is called endemic. उसमें एग्जांपल है रेड पांडा जो ईस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं, एंड मस्क डियर, ओके, जो मणिपुर साइड के फॉरेस्ट में मिलते हैं। There's a very nice video about red panda which I have मैं WhatsApp ग्रुप में भेजता हूँ। ओके, रिसेंटली when I went to दार्जिलिंग, वहाँ पे जू में था ये एनिमल, उसी का वीडियो लिया मैंने। बट ये वुल्फ जैसा है ना? हाँ, बोल, थोड़ा इट्स अ रेड पांडा, उसी फैमिली का है। ओके, बट वेरी क्यूट एनिमल एंड बहुत एक्टिव है एकदम, अच्छा लग रहा है देखने को। एंड ये मस्क डियर, इसका स्पेशलिटी ये है कि इसके स्किन में ग्लैंड्स है एंड दैट ग्लैंड्स रिलीज वेरी गुड क्वालिटी फ्रेग्रेंस। तो ये एनिमल इसके लिए डेंजर में आ रहा है बिकॉज इसका स्किन को काट के लोग लेके जाते हैं, पोचिंग करते हैं वो ग्लैंड्स में से परफ्यूम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस एनिमल इज कमिंग इनटू डेंजर। ओके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स नीड परफ्यूम फॉर देयर ओन पर्पसेस, तो ये एनिमल को खतरे में डाल दे। ठीक है, सो अंडरस्टूड रेयर स्पीशीज। देन यू हैव वल्नरेबल स्पीशीज। ओके, वल्नरेबल का मतलब है द नंबर इज एक्सट्रीमली लेस एंड इट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, इतना फास्ट रेट में डिक्लाइन हो रहा है कि नाउ इट इज अ वरीसम रीजन, ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में। दैट्स हाउ द डेफिनेशंस आर डिजाइन्ड। ओके, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल्स है एशियाटिक लायन, इंडिया में हमें सिर्फ गिर सेंचुरी गुजरात में मिलता है। ओके, एंड द अदर वन इज द रॉयल बंगाल टाइगर, which are found in Sundarban. A fully grown adult looks very majestic. Sundarban में अगर कभी देखने मिला तो it will be a lifetime view for the eyes, we can say. ठीक है, so vulnerable species. And then you have something called the indeterminate species. Okay, इसका मतलब है they appear to be endangered क्योंकि हमें बहुत कम नजर आता है, but
they're actually not very endangered or may not be very in danger also. The reason is these animals are generally very shy. वो सामने नजर आते नहीं जल्दी, अंदर अंदर छुपे रहेंगे या ऐसे टाइम पे निकलेंगे when people are not around. So you don't have much information about these animals. इसका बेस्ट एग्जांपल है जाइंट स्क्विरल, शेकरू बोलते हैं उसको. ओके, सी दिस कलर्स हैं, इसमें भी कितने वैरायटीज आ गए. So you have 4 such categories. Okay, endangered, rare, vulnerable, and indeterminate. And for all of them, you have to remember the examples. Okay, so that's almost the end. But are you aware about something called extinct species? Yes. Extinct मतलब चला गया, अभी वापस नहीं आएगा. चला गया in the sense खत्म हो गया. There are no individuals खत्म there. हो गया. Yes. Okay, so examples बताओ extinct का. White rhino recently हुआ ना. Yes, correct. White rhino. Then डायनासोर डायनासोर obviously yes. बहुत टाइप के डायनासोर से जस्ट एक झटके में एक्सटिंक्ट हो गए. Then और एक कौन सा बर्ड था? क्या? Mammoth. The woolly mammoth. Yes. Yeah, recently there was a bird also which got extinct. इंडिया में एक बर्ड था पैसेंजर पिजन करके, वो एक्सटिंक्ट हो गया. ओके, एंड लास्ट टाइम आई मेंशन्ड अबाउट एशियाटिक चीता, वो भी इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एंड देयर इज अनदर बर्ड, उसका नाम है डोडो बर्ड. यू आर अवेयर अबाउट दैट? डोडो. डोडो का मीनिंग है फुलिश. यस, वो हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है. डोडो बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है बिकॉज इट अपीयर्स फुलिश, तो उसका नाम डोडो बर्ड रख दिया. ओके, बट द रीजन व्हाट हैपेंड वाज दैट उसका नंबर बहुत कम था एंड दैट टाइम ये लॉस नहीं थे हंटिंग वगैरह के बारे में. सो द लास्ट लिविंग बर्ड गॉट एक्सटिंक्ट बिकॉज इट वाज गन्ड डाउन बाय समवन, गोली से उड़ा दिया, एंड दैट हैज बिकम एक्सटिंक्ट नाउ. एंड ये डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसके वजह से देयर वाज अनदर ट्री कॉल्ड अ डोडो ट्री, वो ट्री भी एक्सटिंक्ट हो गया. अच्छा, मैंने बताया कि एक स्पीशीज दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं. डोडो ट्री क्यों एक्सटिंक्ट हुआ? द रीजन वाज कि डोडो ट्री के जो फ्रूट्स हैं, ओके, विद द सीड, ओके, this was the only bird, dodo bird, which was able to break open the fruits and dispose the seeds. तो वो जर्मिनेट कर पाती थी. इसमें वो हार्ड रहता था, तो ओनली डोडो बर्ड वाज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. तो जब ये बर्ड ही एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके सीड्स भी कोई तोड़ नहीं पाया, जर्मिनेट नहीं कर पाया, एंड द ट्री गॉट एक्सटिंक्ट. ऐसे एक्सटिंक्शन को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, कि बिकॉज ऑफ वन स्पीशीज अदर स्पीशीज आल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट. इसको नॉक ऑन इफेक्ट भी बोलते हैं. That's why one has to understand कि everything in the nature is interdependent. Last time shrike bird का मैंने दिखाया था, butcher bird, कि वो कैसे अपने predator prey को पकड़ के sharp spines में घुसा के रखते हैं ना. So when such trees are destroyed, the bird also gets destroyed. Okay, so like that there are innumerable numbers of examples in the nature, plants, animals of all types. You can always find out and see for yourself. Okay. So the lesson is almost to an end. एक important point है कि World Biodiversity Day, you have to remember it is observed on the 22nd of May every year. Yeah, याद रखना, objective type question में आ सकते हैं. Okay, can you tell when is the World Environment Day? World Environment Day कब है बता सकते हैं? 6th June. It is the 5th June. Very near. Okay, World Environment Day is on the 5th of June and World Biodiversity Day is on 22nd May. ठीक है, ये याद रखना. So I guess the entire lesson is now over. ठीक है, we have covered everything, all possible examples I have shown you. ठीक है, have you understood everything from the lesson? Any doubt, any queries? Yes, everyone? No. No?
ओके अभी तो रिवाइज करके या देखेंगे। बोलो एक बोलो डाउट था कि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है या फिर एंडेंजर्ड है, उनका डीएनए वगैरह लेके फ्यूचर में हम उनको क्रिएट कर सकते हैं क्या लैब्स में? हाँ, that was इज a देयर very एनी good रिसर्च और question. एनीथिंग Yes, ऑन दैट? research is going on, but for extinct species it is not possible because क्या हो बट जाता है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज yes, endangered के लिए कर तो रहे हैं, क्योंकि that is गए going on. उनका डीएनए वगैरह वी कांट गेट इट नाउ, बट जो एंडेंजर्ड है उनको लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? कर रहे हैं. You are aware about something called plant tissue culture? हाँ, है ना? तो माइक्रो प्रोपोगेशन है, प्लांट टिश्यू कल्चर है, तो बहुत सारे ऐसे But- प्लांट्स के स्पीशीज हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल लेकर उसको लैब में प्रोड्यूस किया जा रहा है. एनिमल्स एनिमल्स का क्या हो जाता है कि टिश्यू कल्चर इज नॉट इजीली पॉसिबल फॉर एनिमल. एनिमल सेल्स जो है लैब में जल्दी प्रोपोगेट नहीं करते. अगर करते भी है तो वो पूरा पूरा एनिमल नहीं बना सकते, कुछ पार्ट्स बना सकते हैं. सम ऑर्गन्स और टिश्यूज कैन बी मेड. That is the major difference between plant tissue culture and animal tissue culture. but I feel in future there will be some research or anything which will lead us to Yes, animals. the research is still going on. और अभी जब ये अवेयरनेस आ रहा है एंड बायोटेक्नोलॉजी का इतना टेक्निक्स हमने डेवलप कर लिया है, तो ये रिसर्च चल रहा है कि अभी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका जेनेटिक मटेरियल को निकाल के किसी तरह प्रिजर्व कर ले. इवन प्लांट्स के केस में अभी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके सीड्स को हम बचा के रखे हैं. इन द फ्यूचर इवन इफ इट बिकम्स एक्सटिंक्ट वी विल ट्राई एंड एटलीस्ट जर्मिनेट इन सम वे. बहुत तरीके से कोशिश हो. प्लांट्स में काफी हद तक सक्सेसफुल है, एनिमल्स में इट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज एनिमल्स में या बोलो. और नेचुरल में जितना नेचुरली होता है उतना तो नहीं होगा ना, मतलब थोड़ा तो. हाँ, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि अगर हमने आर्टिफिशियली कितना भी क्रिएट करो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द हाइब्रिड विगर. Why will be there natural difference? The difference We will be will there try because to make it similar to that one. that what Not happen. We similar, can the only same. make it we can only make it similar. We cannot make it same. और जो टिश्यू कल्चर करते हैं ना हम लोग, टिश्यू कल्चर इज जस्ट लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोनिंग. तो उससे जो But ऑर्गेनिज्म cloning प्रोड्यूस में तो होते सेम हैं ही बनेगा ना. वही मैं कह रहा हूँ, तो सेम बनता है ना, तो उसके वजह से देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन, नो मियोसिस जो नेचुरली होते हैं. तो द कैरेक्टर्स डोंट बिकम वेरी गुड, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस. समटाइम्स इट हैपेंस कि कैरेक्टर्स और अच्छे हो जाते हैं. तो इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस है, ओके, एंड नेचुरल प्रोसेस में क्या हो जाता है कि जैसे पॉलिनेशन हुआ, so it is nature dependent and the pollen grains are struggling on their own to release the male gametes and fertilize the ovule. बट ये सब हम लोग आर्टिफिशियल इसमें निकाल दे रहे हैं ना. इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अपना रोज प्लांट, ओके, इट प्रोड्यूसेस वेरी गुड फ्लावर्स एंड फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिटेबल है वो. बट नेचुरली अभी रोज को हम लोग बोल सकते हैं, हमें बहुत सारे रोज तो मिल जाते हैं, बट स्टिल हम लोग उसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. The reason is naturally in the wild you hardly get any rose plants. And if you observe carefully, घर में भी हम लोग रोज के प्लांट्स लगाते हैं पॉट में, सर, you never get the fruit and seed. रोज अगर मुझे लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं? How do you grow the rose plant? उसके स्टेम कट करते हैं और प्लांट करते हैं. करेक्ट. तो हम लोग ये करते आ रहे हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, कितने सालों से हम लोग रोज के स्टेम को कट करके इजीली प्लांट कर रहे हैं. तो इतने सालों में प्लांट का जो सर इनहेरेंट आपकी आवाज ब्रेक हो गई. ओके ओके, आई टोल्ड कि रोज प्लांट इतने सालों से, ओके, इतने सालों से हम रोज प्लांट को सिर्फ स्टेम कट करके लगाते चले आ रहे हैं. गार्डन्स में भी जब रोज प्लांट लगाते हैं, ओके, ग्रीन हाउसेस में जब रोज प्लांट लगाते हैं, एवरीवेयर दिस इज द ओनली थिंग डन. तो इतने सालों में रोज के अंदर वो जो जेनेटिक कैपेबिलिटी है कि फ्रूट बनाने के, सीड बनाने का, वो चला गया. दैट्स व्हाई यू डोंट गेट द रोज सीड. बस प्लांट में वो आदत बैठ गया कि चलो स्टेम कटिंग से लगा रहे तो मैं सीड क्यों बनाऊं. एनर्जी सेविंग प्रोसेस. पहले बनते थे क्या? मैंने तो कभी सुना नहीं. पहले बनते थे जो वाइल्ड में मिलते हैं. अगर कभी कोई जंगल में जाके नेचुरली ग्रोइंग रोज प्लांट रहेगा तो यू माइट गेट द सीड.
बट वो प्लांट्स बचे ही नहीं ना वाइल्ड में। हम्म, तो ऐसे अगर हम आर्टिफिशियली लगा रहे हैं तो वी आर हैविंग द रोज प्लांट, बट वी कैन नॉट काउंट दैट विद इन बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज इसको हम नेचर में डाल ही नहीं सकते हैं, इट वोंट वर्क। एनिमल्स में अगर एग्जांपल देते हैं तो थिंक अबाउट द पेट डॉग्स, वी हैव सो मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, है ना, बट सबसे ज्यादा जो स्टर्डी या सर्वाइविंग वाला जो डॉग है वो है स्ट्रे डॉग। जो रिच फैमिलीज में स्टेटस के हिसाब से दिखने वाले जो कुत्ते होते हैं उनको अगर नेचर में छोड़ देंगे दे विल नेवर सर्वाइव। तो फर्स्टली उनमें कोई रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी नहीं रहते हैं, एंड दे डोंट हैव दैट हाइब्रिड वीकर बिकॉज दैट इज समथिंग वी हैव क्रिएटेड। So we are having the technology, we can produce, no doubt. Okay, but that won't be the same as what we have in the nature. इसीलिए बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी करके हम लोग जो आर्टिफिशियल क्रॉप्स के वैरायटीज बनाते हैं, कलर्ड कैप्सिकम वगैरह बना देते हैं, तो इट मे बी डिजायरेबल फीचर फॉर अस, बट दैट इज नॉट गुड फॉर नेचर। हम लोग ने ग्रेप्स का वैरायटी बनाया, सीडलेस वैरायटी, जस्ट बिकॉज हमें ग्रेप्स खाते वक्त हमें बीच में उसके बीज नहीं चाहिए, बट नेचर के अगेंस्ट हो गया ना वो। अभी रिसर्च चल रहा है, मैंने सुना, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, कि सीडलेस मैंगोज बनाओ, बिकॉज वो मैंगो का फुल साइज का पल्प मिलेगा खाने को। So do you think it is worthwhile? नहीं ना। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल कीप इट द सेम एज इट इज इन द नेचर। आर्टिफिशियल बना के कितने भी प्लांट्स एनिमल्स बना दो, दैट्स ऑफ नो यूज। अभी तो ह्यूमन बींग्स में भी डिजाइनर बेबीज आ गए। आई डिस्कस अबाउट दैट इन द लाइफ प्रोसेस टू। ओके, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ने पूरा नेचर को एकदम अपने हिसाब से बना दिया सब कुछ। दैट इज वेरी डेंजरस, राइट? Okay, the discussion will never can't end. we create organisms without any modification in them? Like normal capsicums जैसे green Because होते हैं for that to happen, उनका टिश्यू कल्चर उसके लिए एक ही और पॉसिबिलिटी बाय है। टिश्यू कल्चर नहीं, बाय टिश्यू कल्चर इट इज नॉट हाँ पॉसिबल। उसके लिए एक पॉसिबिलिटी है कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, नेचुरली वी विल अलाउ देम टू फर्टिलाइज इन द लैब। इफ दैट इज डन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेचुरल तरीके से वो, मतलब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो बाहर लैब में होगा वैसे। So that may be one possibility, but it is not possible for every species. Okay, okay. So discussion चलता ही रहेगा। So lesson is almost to an end. Now everyone unmute and videos भी on कर लो। At the end there are some questions for all of you. I want everybody to answer. Okay, that will be like a quick summary of the entire lesson. Ready everyone? Okay. Answers के लिए तैयार रहो। I want answers from everybody. I hope nobody is sleeping, right? Okay. So first question. Sacred groves are also called as dash in Maharashtra. देवराई Any other answer? Anyone? आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। मैंने पूछा कोई और आंसर? Anyone? नहीं, it is Devrai. That's the right answer. Second question. Dodo bird is an example of Extinct. correct extinct species. Okay, very good. Then read the question. बताओ। IUCN Others? Any other answer? IUCN. It is not IUCN. The answer is NGT. Okay, NGT is the one that takes care of implementation of the acts and law, environmental related. फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बताओ ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और NEERI का? NERI is an organization, National Environmental Engineering Research Institute. That is NERI, NERI. Okay, NERI का main body is in Lucknow, बॉम्बे और अदर जगह पे भी इसके ब्रांचेस हैं। ओके, ये बताओ नेक्स्ट।
Producers. Producers. The first trophic level always consists of producers. Very good. Next. अभी ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी वाला आंसर है, बट इस ऑप्शन के हिसाब से बता दो आंसर. There are totally 668. 668. That's the From latest number. From 650 to 800 it can Yes, vary. yes. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आएंगे बिकॉज दैट विल बी डिस्क्रिपेंसी. बट अगर आते भी है तो यू राइट वॉट एवर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, उससे अलग मत लिखना कुछ. देन ये Biosphere Reserve. नहीं, it is not biosphere reserve. Sanctuary. It is a sanctuary. Yes, because it is given protected area for a specific wild species. अगर कोई एक दो स्पीशीज के लिए प्रोटेक्ट करता है तो इट इज अ सैंक्चुरी. ठीक है. देन Top carnivores. Top carnivores. टॉप कार्निवल्स. करेक्ट. लाफिंग हाइनस बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉप कार्निवल्स बिकॉज वो सिर्फ दूसरे कार्निवोर्स को खा सकते हैं, फ्लैश वगैरह एकदम. एंड लास्टली देयर आर 4. Come on, this cannot be mistakes. Correct answer is 3. yes, it is 3. अभी अभी तो डिस्कस किए थे. 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. बताओ, तीनों के नाम बताओ. One is Western Ghats, Himalayas, and Eastern part. अरे ईस्टर्न घाट्स. Indo-Burma. ईस्टर्न घाट्स मत बोलो. ईस्टर्न घाट्स इज अनदर प्लेस एंड दैट इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ईस्टर्न घाट्स में मैंने ईस्टर्न पार्ट बोला. इंडो-बर्मा ईस्टर्न पार्ट ही बोला बस. ओके ओके. सो इट इज वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस एंड इंडो-बर्मा. तीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है. Okay, so we are done with this topic and another feather in our cap. We have completed one small lesson. I hope it was justified. Yes, everyone. Okay. And group में मैंने कुछ एक update भेजा था. Recently there was a huge volcanic eruption. Did you see that? कितना सारा smoke निकला, right? And वो लेबनान में जो blast हुआ उसमें भी देखो कितना smoke निकला है. Imagine the amount of smoke and all that we are putting into the environment. बहुत केसेस है, पढ़ते रहो पेपर में. ठीक है. अभी इसका भी टेस्ट वगैरह बनाता हूँ. आई विल कीप सेंडिंग. स्टार्ट प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम विल बिगिन विद लाइफ प्रोसेस 2. ओके एवरीवन. ठीक है, चलो बाय फॉर नाउ. गुड नाइट. बाय एवरीवन. I'll send you the recording.